जी बेटा वेलकम here to your mathematics class. Here we will be starting exercise 3b question number 4 for which I have accepted the data PQ, PS and PR equal to 9 centimeter. All of these equal to 9 centimeter. QR is given as 12 centimeter. RS is given as 7.5 centimeter. So the required here is, after reading the question, we will come to know that quadrilateral PQRS is required, and number second they are asking for the angle QPS. चाहे वो QPS के या SPQ के, both are one and same thing. So here first I drawn here the line QR equals 12 centimeter, and then taking Q as center we will be drawing a line of 9 centimeter. Taking Q as center, we will be drawing a line QP is equal to 9 centimeter. So here I have already noticed down for this, for saving the time, that QR equal to here it is 9 सेंटीमीटर. जैसे बेटा मैं आपको क्लास में बताया करता था, यहाँ पे भी डॉट लगा लें और इस पे भी डॉट लगा लें, और देन वी विल बी ओपनिंग द कंपास अकॉर्डिंगली. Here it will be like P and Q. Your compass is opened. So the second step, after drawing here the baseline QR equal to 12 centimeter, we will be drawing an arc of radius 9 centimeter. तो बेटा ये हमने कौन सा वाला ड्रॉ कर लिया, Q से P वाला. QP equal to 9 centimeter. Now it is also given as RP. There is a common point which is P in both cases, is also 9 centimeter. So taking R as center, once again drawing the line of arc of 9 centimeter. तो बेटा जहाँ पे ये ज्वाइन कर रही है वहाँ पे आपने हल्की सी हाई करनी है, और उसके बाद बेटा आप लोगों ने ज्वाइन कर देना है PQ, which is equal to 9 centimeter, and also QR is also given as 9 centimeter. It will be of dotted line because if I will be drawing it as a dark line, तो ये देखें ट्राइंगल बन जाएगा. लेकिन उन्होंने हमें क्या कहा है, quadrilateral, it's mean that it should be a dotted line. It will be something an internal line of required triangle. तो इसे हम लोग डॉटेड से ड्रॉ करेंगे. उसके बाद बेटा वो आपसे कह रहे हैं ये वाला, अब आपके पास पॉइंट्स और डिसाइड हो गया P, और ये PR is also of the 9 centimeter. So the next point here is to draw an arc of 7.5 centimeter, which will be RS. RS बेटा देखें यहाँ पे कहाँ पे, RS 7.5. ये देखें RS मैंने पहले से रेडी रखा हुआ है 7.5 सेंटीमीटर. तो बेटा अब आप लोग क्या करेंगे, R और S को, RS जितना कंपास ओपन किया, RS will be equal to 7.5 centimeter. Here I will be drawing a arc of, taking R as center, draw an arc of 7.5 सेंटीमीटर. अब ये 7.5 सेंटीमीटर बेटा कहाँ पे ज्वाइन करेगी, इधर ज्वाइन करेगी, इधर ज्वाइन कर, इधर करेगी. अब हमें इसका कहाँ से पता चलेगा, RS was 7.5 सेंटीमीटर and PS. Here we will have once again to find PS equal to 9 सेंटीमीटर. तो बेटा PS के लिए दोबारा आप 9 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करें. ये देखें ये हमने 9 सेंटीमीटर की लगाई थी ना, तो यहाँ पे बेटा P पे रख के you will be drawing an arc of 9 centimeter. So taking P as center, we have drawn there the arc of 9 centimeter. तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट डिसाइड हो गया, S. Now at S point you will be making there and it will be PS equal to 9 centimeter. PS will be equal to 9 centimeter and RS will be equal to 7.5 centimeter. In this way you will be able to complete your question number 4 and the required quadrilateral is drawn. Now the next thing they were saying that to find the angle of QPS.
QPS, वंस अगेन QPS, ये बेटा अब आप लोगों ने मेजर करके देना है. फॉर मेजरिंग दिस वन वी विल बी यूजिंग देयर प्रोटेक्टर. QPS, here it was QP and S. So taking here P as center, I will be setting my line in this way. Sorry, it must be like this one, and then QPS, it was equal how much? Now you can take the reading. It will be QPS starting from the inner scale 0 to 130 and 133. It will be of 133 centimeter. करेक्शन प्लीज़ बेटा, ये जो मैंने सेकंड लाइन ड्रॉ की थी, इट वाज ओनली फॉर मेकिंग द करेक्ट. सेकंड लास्ट जो भी मैंने लाइन ड्रॉ की थी PS वाली, ये सिर्फ करेक्शन के लिए मैंने थोड़ा सा नीचे ज्वाइन कर दिया था. आपने उसे एक ही दफ़ा नीटली ऊपर ज्वाइन कर देना, तो ये मैंने कोई दोबारा से एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ नहीं की है. सो हेयर द रिक्वायर्ड एंगल वाज QPS इक्वल्स 133 डिग्री. I think so. Now you will be clear about it. Any question regarding this one, you can ask me in group. Thank you. Let's starting here. Question number 5, in which it is given to draw a rhombus for which it is given that PQ equal to 6 centimeter. तो बेटा PQ हमने 6 centimeter ड्रॉ कर लिया. उसके साथ उन्होंने डायगोनल हमें दिए PR equal to 9 millimeter, which will be equal to 0.9 centimeter. तो बेटा rhombus की basic properties हैं में रखें that the diagonals of the rhombus bisect each other at 90 degree. तो पहले हमें PR जो हमें डायगोनल गिवन है, इस मीन हमें P पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा. सो हेयर आई एम मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री. लेकिन 90 डिग्री का जो एंगल है ये बेटा हमने एक्सटेंड कितना करना है, इट इज़ ओनली गिवन एज 0.9 सेंटीमीटर, मीन्स 9 मिलीमीटर्स. तो इंटरेस्टिंगली जो आपका 9 मिलीमीटर बनता है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द पेज वी आर यूजिंग, इट इज़ एग्जैक्टली ऑफ अ लिटिल मोर देन 1 लाइन. तो बेटा जो आपकी एक लाइन आपको दी जाती है उससे ये थोड़ा सा ज़्यादा है. तो यहाँ पे बेटा आपके पास कितना बन रहा है, 0.9 mm. So first we will be making here PQ equal to 6 centimeter. Then we will be making here the angle of 90 degree, and the length of that angle of 90 degree will be equal to 0.9 centimeter, means 9 millimeters. So over and above this one is useless. उसे बेटा हम लोग इरेज करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ पे बेटा आपका डायगोनल जो है वो कंप्लीट हो रहा है. सो फ्रॉम दिस डायगोनल फर्स्ट आई विल बी ओपनिंग द कंपास इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि रोम्बस की तमाम साइड्स बराबर होती हैं. तो बेटा ये आपने 6 सेंटीमीटर का कंपास ओपन किया एंड देन मेकिंग एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर. तो बेटा वो जहाँ पे उसे टच करेगा वहाँ से बेटा आप लोगों ने इसे ज्वाइन कर लेना है. ये बेटा आपके पास कितना आ गया, ये भी 6 सेंटीमीटर आ गया. और नाउ हेयर इट वाज PQ, और आपके पास जो डायगोनल था उसकी उन्होंने डायमेंशंस क्या दी थी, PR. तो ये क्या बन गया बेटा, PQ, और यहाँ पे हम लोग क्या रिकग्नाइज कर देंगे R, विच वाज
एंड ओनली 0.9 सेंटीमीटर अबव पी। अब बेटा आर पे रख के आप दोबारा से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे और पी पे रख के भी मेरे बेटे आप लोग 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे। जहाँ पे ये आर्क आपस में ज्वाइन करेंगी यू विल बी मेकिंग हेयर लिटिल डॉट ओवर हेयर। और उसके बाद बेटा आप पी क्यू और ये जो आपके पास पॉइंट आए हैं ये आपके पास बेटा पॉइंट आ गए पी क्यू आर और एस पॉइंट। सो इट वाज हियर द पॉइंट एस and it is also of 6 centimeter and also this one is also of 6 centimeter according to the definition of the rhombus। इसके साथ साथ बेटा उन्होंने आपसे एंगल पूछे क्यू पी एस, क्यू पी एंड एस। इसे बेटा आप लोग प्रोटेक्टर रख के मेजर कर लेंगे। प्रोटेक्टर बेटा आपने बिल्कुल मिडिल में रखा और उसके बाद ज़ीरो के साथ साथ मूव करते हुए आप लोग देखते जाएंगे वेयर इज़ दिस लाइन। सो इट इज़ 175 176 आई थिंक सो इट इज़ ऑफ 170 सॉरी प्लीज़ वेट लिटिल। यहाँ पे बेटा जब हम इसे रख के लगाएंगे अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इट इज़ मेकिंग हेयर द एंगल हाउ मच 175। इट इज़ मेकिंग देयर द एंगल ऑफ अराउंड 175। So the angle here was 175 which was QPS. I think so now you will be clear about your question number 5 and if you might have any question you can ask me in the WhatsApp. Now beta please read out your question number 6 once carefully and then I have taken there the baseline or the starting line as RS equal to 6.7 centimeter beta हम लोगों ने draw किया and then they were saying that R angle will be of 60 degree so at the vertex R we will be making an angle of 60 degree। तो बेटा R पे आप लोगों ने प्रोटेक्टर को प्लेस करने के बाद यहाँ पे आप एंगल बना लेंगे ऑफ हाउ मच इट विल बी ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे रखने के बाद बेटा आप लोगों ने इसे एक्सटेंड कर दिया। सो द सेकेंड स्टेप विल बी टू मेकिंग द एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द वर्टेक्स R। सो द नेक्स्ट दे आर सेइंग दैट QR इक्वल टू 6.3। तो बेटा QR को पहले आप लोग मेजर कर लें। QR हेयर इट इज़ एज आई वॉज मैंशनिंग यू इन द क्लास। पहले रूलर रख के बेटा Q पे और R पे डॉट लगा लिया कर, मैंने पहले से रेडी रखा हुआ है। और उसके बाद बेटा आप लोग Q और R पे प्लेस करके यू विल बी मेकिंग एन आर्क ऑफ 6.3। तो बेटा यहाँ पे आपने 6.3 की आर्क लगा ली। So this will be your vertex Q and it will be of measurement how much 6.3। This will be your third step। First step will be to making the length of 6.7 RS and then making the angle of R at making the angle of 60 degree at vertex R। और उसके बाद R पे रख के आपने कट कर देना है at 6.3 so that your QR will be equal to 6.3। अब बेटा वो Q पे ऑब्जर्व हेयर PQR, P यहाँ कहीं पे बेटा होगा इन इसमें से किसी जगह पे PQR दे आर सेइंग टू मेक द एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो बेटा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर देखें R सॉरी हेयर इट वाज PQR। तो बेटा आप लोग QR को यूज़ करते हुए 75 डिग्री का यानी QR पे आप लोग प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे और प्लेस करने के बाद अब यहाँ से कितने का एंगल बना देंगे 75 डिग्री का। ऑब्जर्व हेयर लाइक दिस। यहाँ पे बेटा आपने प्लेस किया इसे यहाँ
ये बेटा अब आप लोगों ने क्यू आर पे हेयर इट वॉज ज़ीरो, आर पे आपका ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो के साथ साथ मूव करते हुए आप लोगों ने कितने का एंगल बना देना, 75 डिग्री का। सो हेयर इट वॉज 70 और 80 के दरमियान में बेटा क्या आ जाएगा, 75 डिग्री। इज दैट क्लियर बेटा? दोबारा से देखें, क्यू आर पी क्यू आर के लिए पी यहाँ कहीं भी होगा, हमें नहीं पता किस जगह पे एग्जैक्टली होना है, तो हम लोग क्यू आर लेंथ को यूज़ करते हुए क्यू आर पे प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे। जहाँ पे 6.3 कंप्लीट हो रहा था वहाँ पे आप लोगों ने प्रोटेक्टर को प्लेस किया, जहाँ पे आपने आर्क लगाई थी 6.3 की, वहाँ पे प्लेस करने के बाद आप लोग 0 के साथ साथ मूव करते हुए आप लोग 75 डिग्री पे आपने डॉट लगा दिया, और उसके बाद बेटा आप इस डॉट को ज्वाइन कर देंगे क्यू के साथ। Are you clear about it? Now, what they were further saying that your PQ length is 5.3. PQ length is given as 5.3. तो बेटा अब आप लोग 5.3 के लिए कंपास ओपन करेंगे। PQ length is 5.3. तो बेटा Q पे रख के आप लोग P के लिए ड्रॉ कर देंगे R कितने पे, 5.3 पे। यहाँ पे बेटा आपने इसे हल्का सा टिक किया और उसके बाद बेटा आप इसे इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। सो दिस विल बी योर पॉइंट P and your required quadrilateral PQRS is now ready. Now what they were further saying, measure the length PR की बेटा आप लोगों ने लेंथ मेजर करके देनी है। PR को बेटा अगर आप लोग यहाँ पे प्लेस करें प्रोटेक्टर को, सो इट विल बी ऑफ P and placing here PR, it will be about 7 or 7.1. So we can say that PR equal to 7 centimeters, 7.1, both are equally good. And next they are saying to find out the angle RPS. ये ला बेटा उन्होंने एंगल आपको मेजर करने के लिए कहा है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे। RP विल बी योर बेस लाइन। एंगल मेजर करने के लिए आप बेटा इसे बेस लाइन कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे बेटा आपने प्रोटेक्टर को प्लेस किया एंड देन यू विल बी ऑब्जर्विंग दैट हाउ मच ऑफ द एंगल विल बी हेयर, इट विल बी, ये जो आपके पास PS की लाइन आ रही थी उससे बेटा आप मेजर कर लें ये कितने डिग्री पे आ रही है, 70। 110 पे भी आ रही है, लेकिन 110 विल, हमने 180 से तो नहीं स्टार्ट लिया था ना, वी स्टार्टेड फ्रॉम 0, तो 0 के अगेंस्ट देखिए बेटा वो कितना बन रहा है, 70 डिग्री। सो द नेक्स्ट एंगल दे वर डिमांडिंग फॉर RPS was concluded as 70 degree Sharif. Now I think so you will be much clear about your question number 6. If you might have any question, please ask during the class or after the class. Thank you. जी बेटा welcome here to start exercise 3B question number 12, in which I have drawn here the baseline 10 centimeter which is PQ, and the next to here is to draw the angle PQR 45 degree. It's mean that it will be on the vertex P. तो बेटा vertex P भी हम लोग कौन सा वाला एंगल बना देंगे, 45 degree. Before start of this question please read it twice so that you will be able to extract the point I have written already over here. Now the 45 degree will be in between 40 and 50, so placing here a dot and then extending the line from vertex P. So this will be the second step to be proceeded. Then we have constructed here the angle of 45 degree from the vertex P. Now next to this one is to make the angle of 60 degree at the vertex Q. तो बेटा Q पे अब आप लोगों ने 45 P and Q, I am changing this one because by mistake I have drawn here the angle of 45 degree at P, जबकि Q पे हमने 45 डिग्री का बनाना था, तो बेटा इसे मैं Q कर देता हूँ और इसे मैं P कर देता हूँ। So at P we will have to make here the angle of
60 डिग्री। तो बेटा पी के लिए एंगल हम लोग 60 डिग्री का बना देते हैं। सिक्सटी डिग्री के लिए बेटा आपने यहाँ से लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ये आपका एंगल QPS, QP and somewhere here it will be S, and likewise the angle of 45 degree will be PQR, which will be PQ, and here somewhere it will be R. Now next to this one is PS equals 3.5 centimeters. तो बेटा अब आप लोगों ने PS के लिए 3.5 सेंटीमीटर का कट लगाना है, आर्क लगानी है। ये देखिएगा 0 and from here I will be picking the point 3.5, PS 3.5 आके बेटा it will be PS is 3.5 सेंटीमीटर। तो बेटा P पे रहते हुए आप लोग कितने का कट लगा देंगे? From the vertex P you will be making the arc of radius 3.5। इसके बाद बेटा यहाँ पे आपने इस पेज को थोड़ी सी हाई भी कर देनी है, like this one. Now next to this is to make PS हम लोगों ने बेटा 3.5 बना लिया, and then they were saying that along with this PS equals 5 centimeter, sorry, PS is 3.5 centimeter, sorry, and QR is 6 centimeter। तो बेटा अब आप QR के लिए ये आपके पास PQR यहाँ कहीं पे होगा बेटा, तो QR के लिए बेटा अब आप लोग 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे। यहाँ पे बेटा एक डॉट लगाया आपने और उसके बाद 6 सेंटीमीटर पे दूसरा डॉट लगाया, और फिर आप कंपास को इस रेडियस के मुताबिक ओपन कर लें, एंड हेयर आई विल बी मेकिंग द आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी रिकग्नाइज एज PQR। तो बेटा QR उन्होंने आपको कितना दिया हुआ था? 6 सेंटीमीटर। नाउ वी विल बी ज्वाइनिंग R with S because our overall required quadrilateral was PQR and S। तो बेटा अब आप S और R को आपस में ज्वाइन कर देंगे, like this one। Now this was our required quadrilateral, and now they are saying to find out the angle QRS। QRS ये बेटा उन्होंने आपका एंगल फाइंड करने के लिए कहा है, तो इसके लिए बेटा आप लोग क्या करेंगे? QRS के लिए अब आप लोगों ने प्रोटेक्टर को प्लेसना है कहाँ पर? QR पर। So it will be something somewhere around this one। Now beta you will be observing that where it is cutting the diagram line, ये बेटा पहले आप इसे सही तरह से बैलेंस करके रख लें, then you will be observing that it is cutting somewhere below 115, 116 and 117, so it will be on 117 degree। Next to this one they are also saying to find out the length of PT, P and T। So what is T? First we will have also to find out the about what they are saying about T।
टी वैसे तो चाय का कप होता है इतनी सर्दी में, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं टी वो किसे कह रहे हैं। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू एस। इसका बेटा अब हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना है, तो ऐसे बेटा हम लोग पहले डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। और इसे ड्रॉ करने के साथ साथ अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं, वी शुड नो अबाउट द लेंथ ऑफ क्यू एस। वो हमें लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि हमने उसी के हाफ से ज़्यादा प्रोटेक्टर को ओपन करना होता है। नो इट इज़ हाउ मच 8.9, इट इज़ 8.9 सेंटीमीटर। Now observe beta, if we are willing to make the perpendicular bisector, it means that we should open there the compass more than half। 8.9 को बेटा हम रफली कहें तो ये 4.5 इसका हाफ बन गया, तो 4.5 का मतलब ये हुआ आप 5 से ज़्यादा का कुछ भी प्रोटेक्टर ओपन कर लेंगे, लाइक दिस वन आई ओपन हेयर फॉर 5.3 एंड देन मेकिंग द आर्क्स अबव एंड बिलो द वर्टेक्स क्यू, क्योंकि हमने क्यू एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो क्यू से ऊपर और नीचे की तरफ आप आर्क लगाएंगे, और बिल्कुल इसी तरह से यू विल बी मेकिंग द आर्क फ्रॉम एस टू अबव एंड बिलो। तो बेटा एक जगह पर देखें वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, दूसरी जगह पे उन्होंने इंटरसेक्ट नहीं किया, तो इसमें कोई परेशानी बात नहीं है। प्लेस इट वंस अगेन ओवर क्यू एंड मेक दोज आर्किंग वंस अगेन लाइक दिस वन। Now we will be joining these two arcs perpendicular bisector के लिए बेटा जैसे किया करते हैं। इन दो पॉइंट्स को बेटा आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। So this is the perpendicular bisector of QS। QS का बेटा आपके पास जो perpendicular bisector आया उसे आप लोग नाम दे दें, लेट्स से AB। AB is the perpendicular bisector of QS। AB is perpendicular to QR। Sorry, QS नहीं था, QR था। अब बेटा what they were saying about the point T, let it be read once again। Construct the perpendicular bisector of QS। QS का बेटा आप लोगों ने perpendicular bisector बनाया, ये QS का perpendicular bisector। What they were saying next, such that it cut PQ को बेटा वो कहाँ पे कट कर रहा है, they are saying that it cut PQ, measure and write down the length of PT। P and T की बेटा आप लोगों ने लेंथ बतानी है, such that is the point where the perpendicular bisector ऑफ QS का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे PQ को कट कर रहा है वहाँ से आपने PT की लेंथ बतानी है। बेटा PT की लेंथ को हम लोग यहाँ से मेजर कर लेते हैं। सो इट इज हाउ मच 5.2। PT की लेंथ बेटा आपके पास कितनी आ रही है 5 और वी कैन से 5.3। PT लेंथ इज 5.3। Now this is your final solution for question number 12 covering both parts. Thank you.